Okay, so who's there? So, hello to all of you. Hello, Riddhi. Hello, Aniket. Hello, Riddhima. So, we Evening, have Riddhi, sir. Riddhima. Hello, Vaibhav. Hello, Shomya. Good evening, Hello sir. to all of you. So, we have 6 participants right now. Evening, Okay, sir. so let's start the class. And I think we went through the last class, we went through the basics of SQL, right? And Yes, now sir. today we will move ahead. So share screen. Okay. Yeah. So you all can see my SQL window, my screen. Is it visible to all of you? Yes, sir. Fine. Sir. So all are there on this meeting, or someone is waiting as well? I think all are there. No, not all. Just 6 people. I think I have made some mistake because I need to admit everyone. It should be automatic. Okay, I will do that. No problem. Fine, fine, fine. So let's start the class. Okay, so I'm going to show up to which slide we have learned yesterday. Up to which point we have learned. I think Commands. gone through all these DDL, DML, then data types, constants. I think we have to start the constants, Sir. or we did it. Yes, sir. No, sir. Types of commands only. Okay, so we have to go through that. So we will start it today. Yeah, it's constant. So up to types of command and data types we have done, right? No, Yes, sir. sir. No data types. No data types. Okay, let's start the You data were type. you was about to discuss, but you ended the class. Okay, fine, no problem. So let's start uh, about the data types in SQL, right? So suppose I'm going to create a table, right? I'm going to create a table, and the table is, suppose that is the employee table. Okay, I want to create a table and having name as employee, and I want these fields. I want code, employee code. I want name, right? I want, suppose the salary, I want to store the salary, right? I want to store the gender, right? I want to store the date of joining. DOJ is date of joining. Suppose I want to store this much of thing, just this much of thing. So now what happens? Suppose code is 101, 102. So that means we have to pre-decide that what type of data this code is going to store, right? So this code is going to store integer type of data. And what is integer? Integer is what? A data type. That means 101, 102, 103. These are integer values. Okay, so this is called integer data type. Now when we will make this variable, make this you can say, oh sorry, I'm going on completely in English, I'm sorry. Just I took 2 classes दो क्लास अभी तुरंत हुआ, एंड उन दोनों क्लासेस में मीडियम ऑफ इंग्लिश, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होता है, तो मैं इंग्लिश में ही फ्लो कर गया, सॉरी यार, सॉरी फॉर दैट. सो इंटीजर जो है, ओके, इंटीजर डेटा टाइप हो गया. अब आते हैं कैर और वैर कैर पे. ओके,
सो कैर और वैरकर क्या होता है? सो जैसे नेम है, नेम में जो हम डालेंगे वो या तो कैरेक्टर वैल्यू डालेंगे या तो वैरकर डालेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए राम कैर भी है, ये कैर वेरिएबल भी है कैर टाइप का, और ये वैरकर वेरिएबल भी है, दोनों है, कैर भी है और वैरकर भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है? कैर और वैरकर का डिफरेंस, अगर आप कल के लाइव क्लास में थे तो मैंने इसको क्लियर किया था, कैर और वैरकर में डिफरेंस क्या होता है। देखो अगर मान लो आप कोई जैसे ये नेम फील्ड आप बना रहे हो, ठीक है, अब आप नेम फील्ड बनाते वक्त क्या कर रहे हो, इसमें आप सपोज करो साइज जो वो 10 डाल दे रहे हो, ठीक है, तो होगा क्या कि 10 साइज के लिए जगह बन जाएगी, 10 साइज की जगह बन जाएगी, ठीक है, 1 2 3 व्हाटएवर, ठीक है। सो कितना हुआ, 1 2 3, आई थिंक व्हाट्स हैपनिंग, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। Am I audible to you, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, wait a minute. I think some issue happened. Erase. Not erase exactly. I have to go to the next slide. Next. No, constant. We haven't taught. Yes, this one. Okay. So what are you saying? Ki suppose I am saying that 10 name has 10. मतलब I have given size. मतलब साइज जो है मैंने 10 दिया है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 साइज हमने दे दिया है। मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस नेम में राम डाला और इसको बनाया मैंने किस टाइप का, कैर टाइप का, तो होगा क्या, राम तो स्टोर हो जाएगा एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लेकिन बाकी के बचे हुए जो 7 होंगे ना, 7 जो बचे हुए होंगे बाकी के, ये 7 जो होंगे वो जबरदस्ती क्या करेंगे, स्पेसेस से भर दिए जाएंगे। किस केस में, कैर के केस में। जबकि अगर यही आप वैरकर बनाओगे, मतलब आप इस नेम को साइज तो 10 ही दे रहे हो लेकिन आप बना रहे हो वैरकर, उस केस में क्या होगा कि राम तो 3 बाइट्स ले लिया, बाकी ये सब रिलीज हो दिए जाएंगे, मतलब इनको रिलीज कर दिया जाएगा सो दैट ये बाद में यूज किए जा सके। इसीलिए मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से कैर के बदले ज्यादा अच्छा होता है कौन सा, वैरकर, ठीक है। इसलिए नेम हुआ, एड्रेस हुआ, कोई बड़ी बड़ी चीजें जो फादर्स नेम हुआ, हम कैर नहीं बनाते, हम वैरकर बनाते हैं। क्यों? ताकि अगर साइज, अगर हम सपोज 50 साइज लिए तो अगर 20 में ही मेरा काम चल गया तो 30 रिलीज हो जाएंगे। ये वजह होती है कि हम हमेशा वैरकर यूज करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे जहां पे सपोज कीजिए साइज फिक्स है, जैसे आपका मोबाइल नंबर हमेशा जो है वो 10 कैरेक्टर्स का ही होगा, तो इस मोबाइल को हम वैरकर क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमेशा 10 कैरेक्टर का ही होना है इसको, तो क्यों बनाएंगे, है ना। तो इसलिए ये जो होगा वो क्या होगा, किस पार्ट, किस में लिया जाएगा, ये लिया जाएगा कैर में लिया जाएगा। इज इट ओके? अगर सर मोबाइल को हम वैरकर बना दे तो कोई इशू तो नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है। कहने का मतलब है कि आपके पास पैसे हैं, आप संभल के खर्च कर लो या पूरे खर्च कर लो, ठीक है। तो ये जो मेमोरी होता है वो आपके लिए क्या है, एक तरह से पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम में हमारे लिए मेमोरी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारे पास कह सकते हैं कि जीबी में, टीवी में डेटा है। लेकिन पहले के टाइम में डेटा बहुत मतलब जो स्टोरेज कैपेसिटीज होती थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, इसलिए उसको बहुत संभाल के यूज किया जाता था। इसलिए हम जो है वैर और कैर और वैरकर में ज्यादा प्रेफर करेंगे वैरकर को यूज करना, ठीक है। तो जैसे देखिए रोल नंबर इंटीजर हो गया, नेम जो है वो कैर या वैरकर आप दोनों रख सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। एफ नेम जो है वो भी कैर और वैरकर रख सकते हैं, एड्रेस भी कैर या वैरकर रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। कॉन्टैक्ट नंबर या तो इंटीजर मान लीजिए या तो अभी मैंने बताया कि कैर मान लीजिए। अब देखिए इंटीजर क्यों नहीं मानेंगे, बेसिकली आप चाहे तो इंटीजर ही मान सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर को, लेकिन इंटीजर उनको मानते हैं जिस पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, राइट। अगर नहीं करना है तो इंटीजर से अच्छा कैर मान लीजिए, बट डिसीजन आपका होता है। एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो उसमें बोलेगा कि आपको क्या है, वो आपको बताएगा कि रोल नंबर इंटीजर है या क्या है, कैर है, तो जैसा वो बताएगा वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लीजिए हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब किस डेट को ज्वाइन किया, तो एसक्यूएल में एक डेटा टाइप ही होता है डेट टाइप का, जो क्या स्टोर करता है, डेट को स्टोर करता है। तो ये जो इसका डेटा टाइप होगा वो डेट टाइप का होगा। और फी या तो इंटीजर हो सकता है या तो डेसिमल। डेसिमल मतलब सपोज किसी फी रुपये पैसे में भी है, जैसे 220 रुपये 25 पैसे, तो ये कहाँ स्टोर होगा, ये स्टोर होगा डेसिमल में। और इंटीजर होगा तो ये 220 रुपीज फिक्स, नो प्रॉब्लम। तो दैट मीन्स अगर आपको पता है कि वैल्यूज इंटीजर में है तो इंटीजर लग लीजिए, अगर आपको लगता है कि वैल्यूज डेसिमल में भी हो सकते हैं तो उसके लिए डेटा टाइप डेसिमल है। तो कौन कौन से डेटा टाइप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है यही 5, इंटीजर पहला, कैर वैरकर, ठीक है, उसके बाद डेट और डेसिमल।
यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और सारा का सारा आप जो एसक्यूएल पढ़ लेंगे इसी 5 डेटा टाइप पे पढ़ लेंगे। तो ये होते हैं डेटा टाइप्स। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, नाम जैसा है वैसे ही। डेटा टाइप का मतलब ये होता है उस टाइप का डेटा, मतलब कि कोई जो फील्ड आप बना रहे हैं वो फील्ड किस टाइप का डेटा क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, जो भी आप रिपीट करने का प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा आयुषी, बिकॉज फिर पता चलेगा कि सब ज्वाइन करते रहेंगे और रिपीट होते रहेगा। ये रिकॉर्डेड है, मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप जो छूट गया वो देख सकते हैं। ठीक है, जहां से भी स्टार्ट हो आप वहां से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि फिर ये रेडमी किस नाम से नाम चेंज करके अपने नाम को किया कीजिए। ठीक है, सो दैट मैं जान सकूंगी किसने ज्वाइन किया है ना। नाउ कमिंग टू द सेक्शन, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई इशू है तो बताइए, किसी को कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया? सर डेट को थोड़ा एलेबोरेट करके बता सकते हैं? किसको, जो डेट को? डेट डेटा टाइप है। यस सर। डेट डेटा टाइप बेसिकली जब हम जब हम बनाएंगे ना, वीडियोस कहते हैं, जब हम बनाएंगे टेबल्स, उस समय मैं आपको ज्यादा क्लैरिटी से बता सकता हूँ। चलिए काम करता हूँ, मैं आपको आगे बताता हूँ, इसी को मैं क्लियर कर देता हूँ। सपोज कीजिए आपको टेबल बनाना है, कुछ क्रिएट टेबल कमांड तो पता होगा सबको, आई थिंक, आई बिलीव। Yes, sir. 11th में तो पढ़ा होगा ना। जस्ट a minute, Scott. So, आप सबने MySQL इंस्टॉल करके रखा है या नहीं रखा है? रखा है। फाइन, चलिए मैं आपको थोड़ा सा डेटा टाइप यहीं पे बता देता हूँ। तो मैंने खोला ये MySQL, ठीक है, एंड नो सर, आयुषी आप क्या कहना चाह रहे हो? ये आपको दिख रहा है जो मैंने MySQL खोल रखा है? इज इट विजिबल टू यू? यस सर। ओके फाइन। सी, सबसे पहला काम जो होता है आपके जैसे ये MySQL खुलता है, सबसे पहला काम होता है डेटाबेस को क्रिएट करना, सबसे पहला काम। तो डेटाबेस को जो क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर ही जाके मैंने जो है वो आप लोग सभी को जो है वो बनाना है, क्या, डेटाबेस को बनाना है। फिर उसके अंदर जाके आपको क्या करना होता है, आपको उसके अंदर जाके फिर टेबल्स बनाने होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं एक डेटाबेस बनाता हूं, सपोज कीजिए डेटाबेस बनाने के लिए जो कमांड होता है वो होता है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे मान लेता हूं पाइथन। मैंने दिया डेटाबेस का नेम और कॉमा कोलोन दिया, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक डेटाबेस को क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, पाइथन है। ठीक है, मैंने जैसे एंटर किया, देखिए मैसेज आया, क्या मैसेज आया, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि आपका डेटाबेस क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब डेटाबेस को क्यों क्रिएट करते हैं ये क्वेश्चन है। तो डेटाबेस को क्रिएट करने का सबसे तरीका जो है वो आसान ये है कि क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, और रीजन क्या हुआ क्रिएट करने का, क्योंकि सारे के सारे टेबल्स को हम जो है वो इसके अंदर रखेंगे। रिद्धिमा एक क्वेश्चन पूछ रही है कि सर व्हेन पाइथन सेशन विल स्टार्ट। देखो रिद्धिमा, मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। मैं पहले एसक्यूएल फिनिश करूंगा, क्योंकि ये कम टाइम में 20 मार्क्स आप अचानक मतलब पूरा ग्रास्प कर लोगे। क्योंकि एक बार जब हम पाइथन में घुस जाएंगे ना, तो हम लास्ट तक पाइथन ही पढ़ते रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपको एसक्यूएल को क्लियर कर दूं। एक बार जब मैं एसक्यूएल को क्लियर कर दूंगा ना, उसके बाद मैं क्वेश्चंस देते रहूंगा, आप इस पे क्वेश्चंस करते रहना, प्रैक्टिस बना रहेगा, और फिर हम पाइथन पे एक बार मूव कर जाएंगे बहुत जल्दी। आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट, क्योंकि एक वीक से ज्यादा ये नहीं चलेगा हमारा MySQL। सो डेटाबेस क्यों बनाते हैं, क्योंकि डेटाबेस एक तो मजबूरी है हमारी, डेटाबेस बनाने मजबूरी है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम टेबल बना ही नहीं सकते, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। पहले डेटाबेस बनाइए फिर उसके अंदर जाइए। ठीक है, तो अब जैसे मैंने डेटाबेस बना लिया पाइथन का नाम से, अब उसके अंदर जाना है तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा यूज कमांड। यूज कमांड का क्या यूज होता है, तो ये आपको लेके जाता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूं डेटाबेस के अंदर। तो यूज, और उसके बाद हम देते हैं डेटाबेस का नेम। तो यूज डेटाबेस का नेम क्या है मेरा, पाइथन, PYTHON। तो हम आ गए डेटाबेस के अंदर। देखिए आपको मैसेज दिखा दिया डेटाबेस चेंज। इसका मतलब आप पाइथन नाम के डेटाबेस के अंदर आ गए, जहां पे आप टेबल्स को बना सकते हैं और अब एसक्यूएल से रिलेटेड हर चीज को परफॉर्म कर सकते हैं।
तो इतना मैंडेटरी था। तो आपने जो फर्स्ट टाइम क्रिएट डेटाबेस और करके पाइथन बनाया, ये सिर्फ एक बार बनाना होता है और ये हमेशा के लिए अवेलेबल रहता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और बंद करके एक बार फिर से ओपन करके देखता हूँ कि ये पाइथन का डेटाबेस अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा। मैं फिर से खोलता हूँ MySQL, ये मेरा MySQL खुला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से अपना पासवर्ड देके इसको ऑन करता हूँ, ये खुल गया, ठीक है। अब मैं अगर देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से डेटाबेसेस मौजूद हैं हमारे SQL में, तो मैं कहूंगा कमांड कौन सा, शो डेटाबेसेस, ठीक है। शो डेटाबेसेस कमांड से क्या हुआ, सारे के सारे डेटाबेसेस जो आपके SQL में बने हुए हैं वो शो कर देगा। कौन कौन सा डेटाबेस देखिए तो, एम्प्लॉई है, इंफॉर्मेशन स्कीमा है, MySQL है वगैरह। देखिए पाइथन भी है, हमने अभी तुरंत बनाया ना, हमने किस नाम से बनाया था, पाइथन। मतलब डेटाबेस बनाना सिर्फ एक बार होता है, आप जब भी उसके बाद MySQL खोलेंगे बस आपको उसके अंदर एंट्री लेनी होती है। उसके अंदर एंट्री लेने के लिए आप क्या करेंगे, यूज कमांड का यूज करेंगे। सो यूज और डेटाबेस का नाम क्या है, पाइथन, PYTHON। सो वी रीच्ड, क्या हो जाएगा, हम पहुंच जाएंगे इसके अंदर, किसके अंदर, पाइथन के अंदर, जहां पे अब आप टेबल्स बना सकते हैं। तो जैसे शो डेटाबेसेस होता है, वैसे ही जब आप किसी डेटाबेस के अंदर आते हैं और ये देखना चाहते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं, उसके लिए कमांड होता है शो टेबल्स। जैसे ही आपने यहाँ शो टेबल्स करके एंट्री किया, पाइथन डेटाबेस के अंदर हैं आप, तो ये बताता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ, कुछ है ही नहीं, कोई टेबल नहीं है यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है, अभी तो हमने तुरंत जस्ट बनाया ही, कौन सा, अभी तो हमने बनाया है अपना डेटाबेस पाइथन, तो इसके अंदर कुछ बनाया नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप कहेंगे शो टेबल्स, टेबल्स दिखाओ कौन कौन से हैं, तो ये कहेगा एम्प्टी सेट, यानी कोई टेबल है ही नहीं। दिस इज ऑल अबाउट कि आप कैसे पाइथन को ओपन करते हैं, कैसे पाइथन नहीं, कैसे आप MySQL को ओपन करते हैं, एंड MySQL को ओपन करने के बाद कैसे आप डेटाबेस बनाते हैं और कैसे उस डेटाबेस के अंदर आते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल इशू है। अब जब जब हम क्या करेंगे, जब जब हम पाइथन पाइथन कह रहे हैं, जब जब हम MySQL को ओपन करेंगे, हमें किसी डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा। तो हमारा अब हमेशा डेटाबेस रहेगा पाइथन, इसी के अंदर हम जाएंगे और आगे टेबल्स को बनाएंगे। यस प्रशांत, आप कुछ कह रहे हैं? सर ये जो 9 रोज इन सेट और ये ब्रैकेट करके कुछ लिखा है, तो ये क्या बताना चाह रहा है ये कमांड? ये बता रहा है अभी कि जो आपके पास टोटल 9 डेटाबेसेस हैं। काउंट कीजिए, एम्प्लॉय 1 2 3 हाँ यस 4, ये तो है। एंड तो ये रोज आपको इस इंफॉर्मेशन को देने में इसने टाइम आपको लिया है 0.3 सेकंड्स का, ठीक है। यानी आपने जो क्वेरी ओके दी, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में, डेटा को निकालने में इसने 0.3 सेकंड्स का टाइम लिया है, राइट? ओके सर, थैंक्स। ओके, सो एनीवन हैज एनी डाउट अप टू हियर? किसी को कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया पूछिए, सर यहाँ पे सर सर अगर कोलन, कोई या पहले अनिकेत, फाइन। सर कॉलन कौन सा यूज करते हैं सर यहाँ पे हम, वो एक सेमीकोलन, डॉट कॉमा। सेमीकोलन, ओके सर, ओके। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर कोई डेटाबेस हमने पहले क्रिएट कर रखा है तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते यूज पाइथन? हाँ, तो अभी तो मैंने वही दिखाया ना, मैंने बंद कर दिया MySQL, फिर ऑन की, ओपन किया तो ओपन करते ही देखो मैंने क्या किया, डायरेक्ट यूज पाइथन ही तो किया, कहाँ मैंने फिर से बनाया। सर शो डेटाबेस कमांड करना जरूरी है पहले? नहीं 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 नहीं, ये तो बस इसलिए है कि आपने इसको मतलब आपने पता देख चल लिया कि जाए। जो डेटाबेस मैंने बनाया था वो है कि नहीं है, बस इसके लिए। चलिए मैं और जी करके सर, दिखा जी। देता हूँ। मैंने ये बंद कर दिया, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ MySQL, ठीक है। देखिए अब मुझे पता था कि मैंने पाइथन नाम से बना रखा है, तो मैंने अपना पासवर्ड पहले यहाँ दिया और डायरेक्ट मैं यहाँ यूज कर लूंगा, यूज पाइथन। सी, डेटाबेस चेंज्ड, ओके। यस सर, थैंक यू सर। ओके, नाउ एनी ऑब्जेक्शन, एनी प्रॉब्लम, किसी और को बोलिए। क्या बात है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो चैट मत करो, चैट कर नहीं करना है, क्योंकि चैट करोगे तो फिर मैं चैट पढ़ते रह जाऊंगा, वैसे नहीं बोलना है आपको, ठीक है। फटाफट, इसलिए मैंने कहा था फेस कैम को यूज करो सब अपना एडजस्ट करो कि कैसे आप फेस कैम यूज करोगे, ठीक है। आप अपना एक पढ़ने का एरिया डिफाइन करो, क्योंकि फिर जैसे मैं पूछूंगा कोई प्रॉब्लम तो आप मुंडी भी हिला दोगे ना ऐसे कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। और मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। सर फेस कैम ऑन करें? डेफिनेटली, व्हाई नॉट, बट आपको, आप इतना मेंटेन कीजिए कि आप जहां हैं वहां सही जगह है और यू आर इन अ प्रॉपर पोजीशन ऑफ स्टडी, राइट। यस सर आई एम। ये नहीं कि सो रहे हैं और आपने फेस कैम ऑन कर दिया, मैं बेड पे सो के और जो है वो काम कर रहा हूँ, नो 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 लाइक दैट। हाँ, इट्स फाइन, गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड। इंटरेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके फाइन, गुड। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ हो गया। अब हमने देख लिया कि हम कैसे डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। फिर हमने देख लिया कैसे डेटाबेस के अंदर हम एंट्री लेते हैं। नाउ व्हाट, अगला स्टेप ये है
कि अब हम इस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे। और ये सारा क्वेश्चन सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रशांत ने क्वेश्चन पूछ दिया, सर डेट को इलैबोरेट कर दीजिए। ये सब बताने का यही रीजन है। चलिए एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल करके। हाँ, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप कैसा टेबल बनाना चाहते हैं। आपको पहले से सेट करना पड़ेगा कि आप टेबल एग्जैक्टली बनाना कैसे चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं अपने इस पे, ओके, और मैं इसको करता हूँ रन, और यहाँ पे मेरा आया, सपोज कीजिए मैं एक यहाँ पे, ओके, सो सी, मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय टेबल बनाना चाहता हूँ। ये देखिए पहले से डिसाइड करना पड़ेगा आपको। इस एम्प्लॉय टेबल में आप फील्ड्स भी पहले से ही डिसाइड करेंगे कौन कौन से फील्ड्स हैं। सपोज कीजिए एम्प्लॉय का कोड आप बनाना चाहते हैं। एम्प्लॉय में आप चाहते हैं नेम भी स्टोर हो, एम्प्लॉय में आप चाहते हैं उसका एड्रेस भी स्टोर हो, ठीक है, फिर आप चाहते हैं उसका डेजिग्नेशन भी स्टोर हो, ठीक है, फिर आप चाहते हैं उसकी सैलरी भी स्टोर हो, फिर आप चाहते हैं उसका जेंडर भी स्टोर हो, और फिर आप चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर भी स्टोर हो। अभी फिलहाल इतना ही मानिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब आपको पहले तो ये देखना है कि टेबल का नाम आपने क्या रखना है। तो आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि मेरे टेबल का नाम जो होगा वो क्या होगा, एम्प्लॉय होगा, राइट। फिर आपको ये देखना है कौन कौन सा फील्ड है। आपने देख लिया हाँ ये मेरे सारे फील्ड्स हैं, मैं ये सारे फील्ड्स बनाऊंगा। फिर इनके डेटा टाइप भी आपको क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। मतलब आपको डेटा टाइप भी जो है वो सोचना पड़ेगा। जैसे कोड मान लीजिए इंटीजर, नेम, वैरचर, ये सब आपको सोचना है अगर आप खुद से बना रहे हैं। एग्जाम में अगर पूछता है तो एग्जाम में आपको सब बताएगा। एग्जाम में कैसे लिखा हुआ है, एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ है कि आपको एक टेबल क्रिएट करना है, ऐसे लिखा है एम्प्लॉय है जिसमें जो है वो कोड है, ठीक है, कॉमा, नेम है, कॉमा, एड्रेस है। एग्जाम में ऐसा आएगा अगर पूछता है कि कैसे क्रिएट करना है। डेजिग्नेशन है, सैलरी है, और क्या है, जेंडर है, ठीक है। बस ऐसे दे देगा क्रिएट अ टेबल लाइक दिस। सो वहां पे भी आपकी मर्जी है कि आप कोड किसको बनाते हो। अब कोड को जो है ना डेट टाइप का मत बना देना, ठीक है। कोड को जो है डेसिमल टाइप का मत बना देना। ऑब्वियस सी बात है इंटीजर होगा। नेम वैरचर होगा, एड्रेस वैरचर होगा, डेजिग्नेशन वैरचर होगा, सैलरी, सैलरी आप इंटीजर भी रख सकते हो, सैलरी आप चाहो तो डेसिमल भी रख सकते हो। और जेंडर में मेल और फीमेल तो एक ही कैरेक्टर है ना, तो कैर मान लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने MySQL पे। So where is MySQL? This is MySQL. Okay. So यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे कौन सा, create table, TABLE, और टेबल का नाम। So what is the name of the table? So टेबल का जो नाम है हमारे वो है एम्प्लॉय, हमने पहले से सेट कर रखा है। ये होता है ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं एंटर कर देता हूं, थोड़ा सा अच्छा दिखता है और आप कंफर्म होते हो कि जो आप काम कर रहे हो वो प्रॉपरली कर रहे हो। सो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, मतलब एक एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट हो रहा है, इसमें एंटर किया मैंने उसके बाद, ठीक है। तो अपने आप ये एरो का साइन आ गया। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले कोड बना रहा हूँ, यानी कि मैंने फील्ड का नाम दिया कोड, फिर मैं इसका डेटा टाइप दूंगा। सपोज कीजिए मैं इसको इंटीजर टाइप का बनाना चाहता हूँ। इंटीजर में साइज देने की जरूरत नहीं होती है, और अगर आप इसको प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो उसके सामने ठीक आप लिखिए प्राइमरी की और फिर दीजिए कॉमा। कॉमा का मतलब होता है अभी आपको और फील्ड्स बनाने। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। आपने क्रिएट किया टेबल जिसका नाम एम्प्लॉय है। पहला आप उसमें अब ब्रैकेट ओपन करने का मतलब आप उसके अंदर के जा रहे हैं बताने के लिए क्या, फील्ड्स। पहला फील्ड क्या है, कोड है। दूसरा फील्ड क्या है, अभी बताया नहीं है। पहला कोड है और मैंने बताया कि उसका टाइप इंटीजर है और वो एक प्राइमरी की है। प्राइमरी की मतलब वो जो है डुप्लीकेट नहीं होगा। आई थिंक प्राइमरी की आपको पता है क्या होता है। प्राइमरी की मींस वो डुप्लीकेट नहीं होगा। प्राइमरी की का मतलब उसमें जो है वो वैल्यूज जो है वो रिपीटेड नहीं होंगे, राइट। आयुषी, आई नो यू नो द बेसिक्स, लेकिन ये इसको बताने के बाद ही फिर मैं बढ़ूंगा, बिकॉज मैं बिल्कुल बेस से उठाऊंगा ताकि कुछ भी छूटे नहीं, एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटे। कोई कुछ पूछ रहा था, एनीवन वाज आस्किंग समथिंग? सर या सर अभी रिपीट करोगे प्राइमरी की, जब आप उससे पीपीटी से दोबारा कराओगे तो प्राइमरी की कैंडिडेट की करा दूंगा। प्राइमरी की का मतलब होता है, अभी समझ जाओ ना, प्राइमरी की का मतलब क्या हुआ कि कोड जो है आपका, जो कोड नाम का फील्ड है, वो ना ही आप ब्लैंक छोड़ पाओगे। मतलब जब उसमें कुछ वैल्यू आप डालोगे उसको आप कभी ब्लैंक नहीं छोड़ पाओगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल पाओगे। जैसे कि किसी को अगर आप कोड आपने 101 दे दिया तो अगली बार किसी दूसरे आदमी को आप 101 नहीं दे सकते हो। यही होता है प्राइमरी की का मतलब।
तो प्राइमरी की का सिंपल सा मतलब ये हुआ, ठीक है। नाउ कोड के बाद क्या था, नेम था ना, तो नेम बनाऊंगा किस टाइप का, varchar का। varchar में आपको साइज देना पड़ता है। मान लीजिए मैं एज्यूम करता हूँ कि 50 कैरेक्टर से ज्यादा तो किसी का नाम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने मैक्सिमम 50 दे दिया। varchar बनाने का फायदा क्या हुआ कि अगर ये 50 से कम भी होगा तो कोई बात नहीं, वो अपने आप रिलीज हो जाएगा। और मैंने इसमें डाला नॉट नल। नॉट नल का मतलब समझते हैं, ये भी एक कांस्टेंट है, खाली नहीं रहेगा। यस मतलब आपको नेम के लिए वैल्यू देना पड़ेगा। आप जब इंसर्ट करेंगे उस समय नेम के लिए आपको वैल्यू देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी होगा, ठीक है। नाउ मस्ट नेम के होगा। बाद क्या था, एफ नेम था, फादर्स नेम था या नहीं था, आई डोंट थिंक था, देखे क्या, एक मिनट, हाँ नेम सर था। एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस। ओके तो एड्रेस इज व्हाट, varchar, और एड्रेस बड़ा होता है तो मैंने 100 ले लिया, ठीक है। इसको भी मैंने डाल दिया नॉट नल, ताकि इसको भी कोई ब्लैंक नहीं छोड़ सके। फिर एंटर किया मैंने, देखो मैं एक एक करके एंटर कर रहा हूँ ना, इससे क्या होता है, विजिबिलिटी अच्छी होती है, आपको पता होता है आप क्या लिख रहे हो। बहुत लोग एक ही लाइन में पूरा लिख देते हैं, तो एक ही लाइन में लिखने पे कंफ्यूजन हो जाता है, हो सकता है गलत भी हो जाए, इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ। फिर डेजिग्नेशन DESIG, फिर ये भी varchar, और कोई भी डेजिग्नेशन आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 50 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा होगा नहीं। डेजिग्नेशन मतलब पोस्ट, किस पोस्ट पे है वो। आप चाहें तो इसमें भी नॉट नल लगा सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। देखिए कॉन्स्टेंट लगाना आप पर डिपेंड करता है, आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट नल, ठीक है। मैं इसको भी कहूंगा कि नहीं, इसको भी कोई ब्लैंक नहीं छोड़े। फिर नेक्स्ट क्या है, सैलरी, SALARY, और मैं इसको बनाता हूँ क्या, इंटीजर टाइप का या डेसिमल टाइप का, वो मेरी मर्जी होती है, लेकिन मैं इंटीजर नहीं बनाऊंगा क्योंकि आजकल तो रुपए पैसे में मिलता नहीं, पैसे में तो सैलरी मिलती नहीं है, इसीलिए मैंने इसको बताया इंटीजर। और मैंने इसको कहा क्या, चेक कांस्टेंट, इसमें मैं लगाता हूँ एक चेक कांस्टेंट। चलिए अभी चेक छोड़ देता हूँ क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ इंटीजर लगता हूँ, कॉमा, और क्या है, जर में ई आएगा ना जेंडर, सॉरी, सर, इंटीजर में ई आएगा। ओ शिट 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 पता है क्या होगा, सब अब कुछ स्टार्टिंग से करना पड़ेगा फिर से। बिल्कुल सब कुछ लिखना फिर से, कोई पड़ेगा। बात नहीं। चलिए पूरा करते हैं इसको। जेंडर जो है वो किस टाइप का, कैर का होगा, और कैर का साइज क्या होगा, 1, ठीक है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे कैर में आपने साइज दे दिया 1, बाय डिफॉल्ट कैर की जो कैपेसिटी होती है वो 1 ही होती है। सो अगर आप यहाँ नहीं भी देंगे ना 1, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है वो 1 कैपेसिटी का ही है। इज इट ओके। नाउ एंटर, आपने जो ये ब्रैकेट यहाँ शुरू किया था वो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन और करेंगे एंटर, तो ये दे देगा एरर, क्योंकि आपको पता है हमने क्या गलती किया है, इंटीजर की स्पेलिंग गलत किया है। चलिए उसको सुधारते हैं। इंटीजर ये रहा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, फिर कोड इंटीजर प्राइमरी की, फिर नेम, फिर एड्रेस varchar, फिर डेजिग्नेशन नॉट नल, फिर सैलरी, ये गलत था मेरा, इसको मैंने सुधार लिया इंटीजर कमा, ठीक है। नाउ एंटर, देन अगेन इंटीजर के बाद क्या था, सैलरी के बाद क्या था मेरा, जेंडर था ना, सिर्फ एक जेंडर कहाँ गया, यस जेंडर कैर। और चूंकि जेंडर के बाद और कुछ नहीं इसीलिए हम कॉमा नहीं देंगे यहाँ पे, बस यहाँ से कोलोन किया, मतलब बंद किया ब्रैकेट और सेमीकोलन दिया और एंटर किया। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्वेरी ओके, जीरो रोज इफेक्टेड, और इसको करने में उसको 2.38 सेकंड्स का टाइम लगा, राइट। सो दैट मींस आपका एक टेबल क्रिएट हो गया है। अब जब आप कहेंगे शो टेबल्स, तो देखिए आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई दिया जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, हाँ एम्प्लॉय टेबल, राइट। सो पहले जब हमने बनाया था, जब हमारा बिल्कुल ब्लैंक था, मतलब एक डेटाबेस हमने बनाया था उसमें कुछ नहीं था, तो जब हम वहां पे शो टेबल्स कर रहे थे तो कुछ नहीं था, लेकिन अब जो है एक टेबल बन गया है और ये टेबल परमानेंटली रहेगा। मतलब अगर मैं फिर से MySQL को बंद कर दूं, मैं फिर से MySQL को ओपन करूं, ठीक है, अब मुझे पता है कि मैंने जो है बनाया था डेटाबेस, उसका नाम पाइथन था, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं करूंगा यूज पाइथन, जिससे मैं आ जाऊंगा पाइथन के अंदर, ठीक है। अब मुझे पता था कि मैंने टेबल बनाया था किस नाम से, एम्प्लॉय नाम से, अगर मुझे याद नहीं है तो मैं यहाँ शो टेबल्स भी कर सकता हूँ। लो तो यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्लॉय टेबल दिखा दिया। अब मैं भूल गया, सपोज करो मैं भूल गया कि एम्प्लॉय टेबल में मैंने क्या क्या स्ट्रक्चर बनाया था, मतलब एम्प्लॉय टेबल में मैंने क्या क्या बनाया था, क्या क्या हेडिंग्स थी, क्या क्या फील्ड्स था, मैं भूल गया, सपोज करो 10 दिन बाद में आता हूँ, तो उसके लिए होता है DEST कमांड, DEST, और टेबल नेम इज व्हाट, एम्प्लॉय। एंटर किया, देखो क्या दिखा रहा है, आपको यहाँ पे हर चीज दिखा रहा है। फील्ड का नाम क्या था, उसका डेटा टाइप क्या था, उसमें नल हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या वो एक प्राइमरी की है, और उसमें डालना जाने वाला डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। ध्यान समझना, फील्ड क्या था, कोड, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, नल हो सकता है क्या, नल हो सकता है क्या, तो ये कह रहे हैं हम नल नहीं हो सकता, नल नो मींस नल जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है।
और ये कोई की है तो हाँ ये प्राइमरी की है, ठीक है। वैसे ही दूसरा नेम, varchar 50 इसका साइज है, क्या ये नल हो सकता है? नहीं, ये नल नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ नॉट नल लगाया था, याद हो आपको, जब बनाया था मैंने नॉट नल लगाया था। वैसे ही एड्रेस varchar 100 साइज है उसका, ये भी नल नहीं हो सकता है। डेजिग्नेशन भी varchar है, इसका साइज 50 है, ये भी नल नहीं हो सकता है। सैलरी इंटीजर टाइप है, ये नल हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैंने इसमें नॉट नल नहीं लगाया था, इसलिए आप इसके लिए वैल्यू बिना दिए हुए आगे बढ़ सकते हैं। और जेंडर जो है वो कैर टाइप का है, साइज इसका 1 है, और ये भी नल हो सकता है, मतलब इसके लिए भी वैल्यू आप चाहें तो बिना दिए हुए आगे बढ़ सकते हैं। सो चैट विंडो, who is this? Ayushi, no, I don't know basics, sir. I don't know, sir, basics. Varchar means I didn't get right. Okay, varchar का मतलब होता है आयुषी, आप कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। मैंने समझाया तो है varchar का मतलब, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब varchar वैल्यूज होते हैं। जैसे मेरा नाम, अब जैसे मान लीजिए आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया ना, स्ट्रक्चर बनाने का मतलब क्या हुआ, आपने स्ट्रक्चर बना के अब इसमें एंट्री करनी है, वैल्यूज डालनी है, ठीक है। अभी आप देखोगे, अगर आप करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये होता है देखने के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। देखो क्या दिखा रहा है, एम्प्टी सेट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय का मतलब होता है आप देखना चाहते हो कि इस एम्प्लॉय टेबल में कौन कौन से डेटा है, कितने कितने डेटा है। तो इसमें डेटा तो है ही नहीं, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एम्प्टी सेट, मतलब आपके इस टेबल में कोई रोज नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है। तो varchar का मतलब होता है कि आप कोई भी मतलब नाम स्टोर करने जा रहे हो, दैट इज मींस varchar, ठीक है। नाउ वैल्यू कैसे इंसर्ट होती है, तो इंसर्ट करने का तरीका होता है, कमांड होता है इंसर्ट इनटू, व्हाट इज द वर्ड, इंसर्ट इनटू, एंड देन आप दिखेंगे क्या, टेबल का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल, एम्प्लॉय। So insert into employee, yes. सर ये प्रीवियस कमांड बता दीजिए, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। ये कमांड जो होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब लुटिया गुल है। ये सारे 11th के कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स 11 के हैं। 12th का तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा अभी, 12th का कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक, एक लाइन भी नहीं पढ़ाई 12th की। बोर्ड आने वाले हैं 2 महीने जो पढ़ा रहा हूं ना उसको पढ़ो और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और खूब सारे क्वेश्चंस करना, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, सेलेक्ट का मतलब होता है, टेबल बना लिए ना, तब टेबल बनाने के बाद उसमें से वैल्यूज निकाल के देखने भी तो होते हैं कि कौन कौन से वैल्यूज है उसमें। अभी तो हमने कुछ डाला नहीं था, मतलब मैंने तो बस एक खांचा बना दिया ना कि भैया मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें कोड होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, डेजिग्नेशन होगा, सैलरी होगी और जेंडर होगा, लेकिन मैंने एग्जैक्टली उसमें कोई वैल्यूज डाला ही नहीं है। तो जब मैंने उसमें कोई वैल्यू डाला ही नहीं है, तो जब मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये एक ऐसा कमांड है जो टेबल में से डेटा दिखाता है ही नहीं कुछ, तो क्या दिखा दिया, एम्प्टी सेट। गॉट इट। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब जब मुझे पता है कि मैंने टेबल बना लिया है, टेबल का स्ट्रक्चर, तो उसमें मैं डाटा भी डाल सकता हूं। डेटा डालने के लिए कमांड होता है इंसर्ट इनटू कमांड। द कमांड नेम इज व्हाट, इंसर्ट इनटू। तो इंसर्ट इनटू एंड व्हाट, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय एंड देन ब्रैकेट ओपन। अब आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। पहले कोड है तो आपको कोड के लिए वैल्यू पास करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं कोड देता हूं 101, फिर कॉमा, दूसरा क्या है, नेम। तो नेम में क्या डालना है, तो कोई भी नाम डालेंगे। जैसे मैं डालता हूं सपोज कीजिए प्रशांत, PRASHANT, राइट। अब आप कहोगे सर आपने नेम में जो है, मतलब जो कोड है, कोड में जो है वो आपने सिंगल कोट्स नहीं डाला, जबकि नेम में आपने सिंगल कोट्स डाला। तो देखिए इंटीजर को छोड़ के बाकी सबको सिंगल कोट्स में डालते हैं, ये रूल है MySQL का। यानी कि जो भी वैल्यू आप पास करेंगे, सिर्फ इंटीजर वाले वैल्यू को छोड़ के जितने भी वैल्यूज आप पास करेंगे, इंटीजर और डेसिमल को छोड़ के, उस सब में आपको सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा। इसलिए इंटीजर में मैंने सिंगल कोट्स नहीं लगाया, प्रशांत में लगाया मैंने। फिर एड्रेस, तो मान लीजिए एड्रेस में मैं सिर्फ न्यू दिल्ली डालता हूँ, इसमें भी देखिए मैंने सिंगल कोट्स लगाया, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, varchar है। नाउ डेजिग्नेशन, तो आगे चल के अगर मान लीजिए डॉक्टर बनते हैं प्रशांत, ठीक है, तो डेजिग्नेशन में डॉक्टर डाल दिया, कॉमा, सैलरी, तो ये तो अब प्रशांत ही बताएंगे कितनी सैलरी चाहिए प्रशांत आपको। सर गुरु जो देना वही बहुत है। अरे नहीं, फिर तो मैं 10 लाख दे देता हूँ, लीजिए ठीक है, इतनी सैलरी ले लीजिए आप, कॉमा, फिर आगे जेंडर, तो जेंडर में मेल, सिंगल कोट्स में मैंने डाल दिया M, ओके। नाउ ये बंद। सो आपको सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा, एंड नाउ द सेमीकोलन। तो क्या होगा, 101 जाएगा कोड में, प्रशांत जाएगा नेम में, न्यू दिल्ली जाएगा एड्रेस में, डॉक्टर जाएगा किसमें,
डेजिग्नेशन में, और जो भी अमाउंट है 10 लाख वो जाएगा किसमें, सैलरी में। 10 लाख ही है ना, ये ज्यादा है जीरोस काउंट कर लेना। और जेंडर में जाएगा एम, और मैंने जैसे एंटर किया, ओ माय गॉड सम एरर, क्या एरर, यू हैव एंटर एन एरर नियर 101 प्रशांत, क्या कुछ गड़बड़ी की हमने कोड में, देखिए इंसर्ट इनटू हाँ EMPLOY ये तो ठीक ही है, 101 कॉमा प्रशांत सिंगल कोट्स में कॉमा न्यू दिल्ली कॉमा डॉक्टर, व्हाट इज द एरर? सर गैप नहीं आता है, न्यू किसमें? दिल्ली में आपने गैप दिया है, किसमें न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली नहीं गैप्स तो अलाउड है। हाँ 101 प्रशांत न्यू दिल्ली, कोई कुछ गड़बड़ी हुई है, दिख नहीं रहा है बिना ये सबसे गंदा चीज होता है, मैं इसको पता है आपको एरर नहीं बताता ये क्या है, बस यही लाइन बस लिखा हुआ है हमेशा, हर एरर में यही लाइन लिखा हुआ है। चलो सब फाइंड करो, पता करो, बताओ मुझे, मेरी आंखें थोड़ी आज काम नहीं करेगी, मैं मैग्नीफायर एक बार बिना गैप के ट्राई करें, हाँ एक बार बिना गैप के, लाइक अंडरस्कोर लगा के। नहीं, अगर मुझे न्यू दिल्ली डालना है तो मैं नहीं डालूंगा, जबरदस्ती में नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा भाई मुझे न्यू दिल्ली डालना है तो मना कैसे करोगे आप, मैं डालना चाहता हूँ न्यू दिल्ली। शायद मेरी स्पेलिंग कहीं गलती है, INSERT इंसर्ट INTO इनटू एम्प्लॉय EMPLOYEE, ठीक है। तो कोड को मैंने इंटीजर टाइप बनाया, मैंने 101 डाल दिया, कॉमा नेम को मैंने प्रशांत डाल दिया, कॉमा न्यू दिल्ली डाल दिया मैंने एड्रेस में, फिर डेजिग्नेशन में मैंने डाल दिया डॉक्टर, फिर ये क्या सैलरी ज्यादा हो गई है क्या तुम्हारी प्रशांत, जो रेंज से बाहर चली गई हो, एंड कॉमा कंप्यूटर को पसंद नहीं आया उसको। हाँ मुझे लगता है यही प्रॉब्लम है, चलो सो सैलरी कम करते हैं क्योंकि और कुछ गलत तो दिख नहीं रहा मेरे को। ओह शिट सॉरी इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और उसके बाद होता है एक टर्म वैल्यूज, क्या होता है वैल्यूज। अब सैलरी, हाँ सैलरी, अब मैं तुम्हें सैलरी पूरी दे सकता हूँ, लो जितनी सैलरी चाहिए थी तुम्हें ले लो, ठीक है। मैं वो टर्म भूल गया, सो ये कमांड है, देखो एक भी वर्ड अगर भूल गए खत्म। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और तब जाके आप सारे वैल्यूज दोगे और एंटर करोगे। देखो वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड, मतलब अब जब आप करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो अब ये क्या करेगा, एक डेटा दिखाएगा आपको, देखो कोड के नीचे 101, नेम के नीचे नेम, एड्रेस के नीचे एड्रेस, डेजिग्नेशन के नीचे डेजिग्नेशन, सैलरी के नीचे सैलरी, और जेंडर के नीचे जेंडर, राइट। और इसी तरीके से आप हजारों रिकॉर्ड्स की एंट्री करोगे। अब इसे मान लो मुझे फिर से करना है, मैंने यहाँ दिया 102, फिर मुझे जो भी देना है मैं वो दूंगा, सपोज नाम इसका वैभव है, VAIBHAV, ये भी मान लो न्यू दिल्ली से है। वैभव क्या बनना है तुमको, डॉक्टर, तुमको भी, चलो सर ये मैं कि इसके साथ ही पढ़ता हूँ मैं प्रशांत जब के। बुढ़ा होऊंगा तो बहुत सारे डॉक्टर स्टूडेंट रहेंगे मेरे, ठीक है और सारे डिटेल मैंने यही मान लिया, सैलरी कम दे दूंगा तो वह गुस्सा हो जाएगा, एंटर। तो दूसरा, अब मुझे फिर से देखना है कितने कमांड कितने रोज हो गए, तो सेलेक्ट स्टार करूंगा, 2 रिकॉर्ड्स हो गए। ऐसे ही हजारों रिकॉर्ड्स आप डाल सकते हैं वन बाय वन, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि किस सीक्वेंस में आपको डालना है। तो सीक्वेंस कैसे पता चलेगा, तो वही DEST कर लेना, DEST एम्प्लॉय, ठीक है, और यहाँ से देख लेना क्या सीक्वेंस है, और इसी सीक्वेंस में आपको क्या करने पड़ेंगे, वैल्यूज को डालने पड़ेंगे। सर ये जो अभी आपने मेरा रिकॉर्ड डाला था अभी, उसके बाद वेब का डाला था, तो वो वैल्यूज दोबारा आ गई थी, आपने बस एडिट किया, वो कैसे किया आपने? आप एरो की और डाउन एरो की को यूज करते हैं, वो एरो कीज को जब आप यूज करोगे ना, अप एरो की और डाउन एरो की को, तो प्रीवियसली यूज्ड कमांड्स आ जाते हैं, सर कमांड एडिट कर, में भी होता है, उसमें एडिट कर लो, ओके ठीक है, गॉट इट। Yes. सो अभी Yes, तक sir. किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, प्रशांत कोई प्रॉब्लम अभी तक यहाँ तक? सर प्रॉब्लम सर अभी उसमें आई थी, जैसे कि अभी आपने जब वो लिखवाया था, जब हमने इसमें डेटा टाइप डाले थे, कोड के लिए क्या डेटा टाइप है, नेम के लिए क्या डेटा टाइप है, तो आपने एक पर्टिकुलर एंटर करके लाइन बनवाई थी जिससे कि हम डेटा को देख सकें। अब जब हमने किसी फील्ड में रिकॉर्ड डाला, जैसे आपने अभी वेब का रिकॉर्ड डाला 101 करके, तो उसको हम एंटर करके नहीं डाल सकते जिसके हमको प्रॉपर्ली दिखे कि किस चीज में क्या जा रहा है। ये बैकएंड है, ये बैकएंड इसी है, वजह से आपको याद करना पड़ेगा कि क्या ये है।